Hare Krishna. So let us start with the prayers. You please try to follow the prayers which I am chanting. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naran Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudhiraye Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavati Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन भगवान की जय। श्री श्री निताय गौरांग की जय। प्रहलाद नरसिंहदेव भगवान की जय। भक्त हनुमान गरुड़देव की जय। श्री पंच तत्व की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरे नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी सुत गोस्वामी की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। So I'll just share the video. I hope it is visible to you all now. Just a second. So today we are here to discuss about Srimad Bhagavatam. And as I had written in the message, it seems like it is uh, a very big task, in fact, to discuss the Srimad Bhagavatam, because Bhagavad Gita has got just 700 shlokas, 18 chapters, whereas Srimad Bhagavatam में कितने श्लोक है? There are 18,000 shlokas, right? In fact, whenever I'm saying something and I'm asking, you can just always. I'm not audible. Just. Hare Krishna. Yeah. So, so Srimad Bhagavatam is such a wonderful literature that
throughout the whole creation from time immemorial, there have been many people who had been reciting श्रीमद् भागवतम. बहुत सारे जो है बहुत ही अच्छे अच्छे मुनियों ने, संतों ने, देवताओं ने आदि ने श्रीमद् भागवतम को सुना है और समझा है. So Srila Prabhupada ji, we remember this past time when he was about to go to America. He first went to which place? Anybody can tell me in India before going to America? Where did Prabhupada go? Yes, anyone can type in your chat box. Boston. That's in America only. Yes. Anything else? Okay. Actually, Prabhupada जो जाते हैं वो अद्वैताचार्य के घर जाते हैं शांतिपुर में. Yes, Bhuvan is right. Right. So just a minute. So when Prabhupada goes there, we know how he was crying there. कंटिन्यूसली जो है प्रभुपाद जी काफी दिन वहाँ जाते हैं और सुबह से दोपहर तक या शाम तक प्रभुपाद वहाँ बैठ के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ही वॉज चैंटिंग हरे कृष्णा ऑन हिज बीट्स. तो वहाँ के जो पुजारी है वो हर दिन देखते थे कि कोई जो व्यक्ति है वहाँ बैठा हुआ है एंड he is always chanting Hare Krishna very softly, quietly. एंड वो उनको ऑब्जर्व करते थे और थोड़ी देर के बाद में फिर से अपनी सेवा में लग जाते थे. तो अद्वैताचार्य हम लोग को पता ही है, ही इज इनकारनेशन ऑफ महाविष्णु एंड सदाशिवा. सो उनका जो घर है वो शांतिपुर है. चैतन्य महाप्रभु जब अवतार लिए थे उससे पहले अद्वैताचार्य शांतिपुर में रहते थे. ये बात है 500 साल पहले की. तो प्रभुपाद जब अमेरिका जाने की ठान लेते हैं उनके गुरु महाराज के आदेश पर, वो पहले कैलकाटा जाते हैं, कैलकाटा से फिर शांतिपुर जाते हैं. और वहां पर हर दिन जब विजिट करते थे तो प्रभुपाद वाज चैंटिंग एंड प्रेइंग टू श्री अद्वैताचार्य फॉर हिज मर्सी दैट प्लीज एम्पावर मी so that I can spread the message of Srimad Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam of my Guru Maharaj throughout the world. Like that, he was actually praying to Srila Advaitacharya. So then devotee, we know how this devotee was telling that suddenly, actually, Prabhupada was not there, and after a few days he came up. He was then he came up with the prayer, and he was happy that Prabhupada is come back. This old friend is come back. So he requests to this pujari. पुजारी जी बोलते हैं कि प्लीज यू प्रे टू अद्वैत आचार्य बिकॉज यू आर वेरी क्लोज टू हिम. सो प्लीज प्रे कि मैं अपने गुरु महाराज का जो मैसेज है पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड कर सकूं. ओ तो आप अमेरिका जा रहे हैं. सो दैट प्रभुपाद टेल्स आई एम नॉट गोइंग टू अमेरिका, एक्चुअली श्रीमद् भागवतम इज गोइंग टू अमेरिका. सो प्रभुपाद वाज बेसिकली अ लिविंग भागवत. एक होता है भागवत, एक होता है भगवत गीता और एक है श्रीमद् भागवतम. भागवत पुराण उसे कहा जाता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू वर्ड्स? वी हैव टू फोकस ऑन दीज टू थिंग्स. भगवत यानी भगवान एंड भागवत यानी, एनीबॉडी कैन टेल मी, कैन टाइप इन द चैट बॉक्स, व्हाट डज दिस वर्ड मीन भागवत? Type in the chat box. What do you understand by Bhagavad? No one knows? Okay. So Bhagavad means basically a person who live Bhagavad is a Bhagavad person. So Bhagavad means basically a devotee of Krishna.
So that's how Bhagavad Gita means what? It is basically Geet by God, Bhagavat by Krishna. And Bhagavad means Geet by his devotee. Geet by his devotee. So श्रीमद् भगवत गीता में बेसिकली बहुत अच्छे अच्छे प्रिंसिपल्स भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं. एंड एक्चुअली इफ वी ऑल वांट टू लिव दोस concepts, right? We all want to actually become pure devotee of Krishna after following those concepts. Krishna is telling so many things in Bhagavad Gita. If we see from chapter 1 till chapter 80, if we see he's telling the concepts of body and soul. He's telling the concepts of karma yoga, concepts of jnana yoga, concept of sankhya yoga and stanga yoga, and he's telling about Virat Purusha, and then finally he's telling Sarva Dharmana Parityajya Mamekam Sharanam Vraja and Tvam Sarva Papebhyo Mokshashyami. So these concepts we are repetitively we are hearing every day in Prabhupada's lectures and at many places. So we all want to become very, very pure. There is no doubt about it. We want to become good devotee of Krishna, pure devotee of Krishna, but still we are not able to become good devotee of Krishna. What is the reason, basically? You can type in the chat box, what is the reason that I know that what shall I do to become good devotee of Krishna, but still I am not able to become good devotee of Krishna? What's the reason? Actually, you can say that we knows the philosophy, we knows the principle, but even then there is something which is always stopping us. जो लास्ट मोमेंट पे जो है ना हमारा दिमाग जो है वो क्या है एकदम गड़बड़ा जाता है. हम लोग फॉलो करना छोड़ देते हैं वो प्रिंसिपल और हम सेंस ग्रेटिफिकेशन में डूब जाते हैं. हमें पता है कि कृष्णा को सरेंडर करना है. Prabhupada tells how much time it takes, just 1 minute, not more than that. So I was discussing last with few boys. They were asking, Prabhu, what shall we do to advance in Krishna consciousness very fast? So then we thought before advancing we have to ponder upon, हमें सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या चीज है जो मेरे एडवांसमेंट से मुझे रोक रही है, मेरे एडवांसमेंट से मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है. So actually this is nothing but you can say a pull, a push from inside who's stopping us going forward in Krishna consciousness. We all want to progress, but sometimes you can say today's generation, they are in clutches of mobiles or opposite gender, movies, this and that. So many divergences are there. So even after chanting 16 round, even after reading these great literatures, actually it becomes very difficult sometimes to progress. So what happens कि हम लोग जो हमारा जो दिमाग है अभी भी कारण क्या है, हमारा दिमाग अभी भी हार्ड वायर्ड है. इट इज वेरी मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सेंस ग्रेटिफिकेशन. यस, हमारा जो पूरा माइंड है वो किसमें एंगेज है, अभी भी कहीं ना कहीं सटल लेवल पे पूरा सेंस ग्रेटिफिकेशन में एंगेज है. सो इफ वी वांट टू एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, हमें पूरी तरीके से जो है कुछ ऐसा करना होगा कि ऑलवेज आई एम इन between the sense gratification, but at the same time something shocking जो spiritual है वो ऐसा कोई शॉक दे हमें. जैसे एक होता है ना पागल आदमी, इसको शॉक दिया जाता है. तो there should be something shocking which gives us a great shock and takes us out of the sense gratification. So how we can do that thing? That happens through Bhagavad. Bhagavan is there, but we cannot touch Bhagavan. We are not that much pure. We are not that much powerful that we can follow the concepts of Bhagavad Gita directly. So that's why here we have to very cautiously follow the instructions given by a Bhagavad. So Bhagavad can are of actually two types, which is you can say Srimad Bhagavad Puran. In Bhagavad Puran, we will see all these kind of things.
we'll see all the concepts which are there in श्रीमद् भगवत गीता। तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हमें यहाँ पे मिलेंगे। एंड सिंस इट इज स्पोकन बाय अ भागवत, भगवत गीता is spoken by Krishna, Bhagavan, and Srimad Bhagavad is spoken by another Bhagavad. That's why we say Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakati Sadma Vande Mohi Savadhan Matre. When you are following some Bhagavad, you have to very cautiously follow that Bhagavad. Just like Shukdev Goswami here, he is a pure devotee of Krishna, he is a Bhagavata, Mahabhagavata. And when he is telling all these concepts, and how he is telling in very depth, he is telling those concepts in depth. And he is telling the context also. Some principle will be applied in some context, and that same concept may not be applied in the same context. है ना, एक परिस्थिति में एक प्रिंसिपल को अप्लाई किया जा सकता हो सकता है, और दूसरी परिस्थिति में हो सकता है वो कॉन्टेक्स्ट, वो प्रिंसिपल वहां अप्लाई ना हो। तो शुकदेव गोस्वामी हम सभी के लिए इतना पेन ले रहे हैं, शुकदेव गोस्वामी हम सभी के लिए क्या है, पेन ले रहे हैं। व्हाट इज द पेन बाय शुकदेव गोस्वामी? कि हम लोग डिजर्व नहीं करते हैं, हम लोग डिजर्व नहीं करते हैं श्रीमद् भागवतम को सुनने के लिए, उसके बावजूद वो हमारे लेवल पे आके उनको श्रीमद् भागवतम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। दैट इज द ग्लोरी ऑफ शुकदेव गोस्वामी। ही इज called as Shuk. Shuk means a parrot. So what is the speciality of a parrot? Parrot can tell something which is very pleasurable to the audience. Srimad Bhagavad Puran is very voluminous. 18,000 shlokas हम लोग जानते हैं, but still this is such a wonderful literature because it is coming out of the first, it is very wonderful literature. Nigam kalpataru galitam phalam shukmukhad dravalayam, shukmukhad drava रसम आलयम। सो जो है शुक यानी जो शुकदेव गोस्वामी उनके मुंह से जो आ रहा है, तो निगम कल्प तरु, जो पूरा जो वैदिक लिटरेचर है, इट्स अ वेरी बिग, और वेदास, 18 पुराणास, देन 108 उपनिषद, फिर 108 उप उपनिषद, 18 उप पुराण, लाइक दैट, इट्स अ वेरी बिग ट्री, राइट। उसका जो गलितम फल है वो क्या है? श्रीमद् भागवतम। निगम कल्पतरु गलितम फलम शुक मुखाद द्रवालय रसमालयम। So when you are hearing this Bhagavatam from our pure devotee of Krishna, then you go into the depth of the concepts which are given in Bhagavad Gita. And then we see the expansions of those concepts, connections of those concepts at different places. So there are total 18 कैंटोस, है ना, 18 वॉल्यूम्स है प्रभुपाद ने लिखा, 12 स्कंद है इसमें, सॉरी। तो कैसे जो है हम देखेंगे उन कॉन्सेप्ट्स को 12 स्कंद में अलग अलग जगह बताया गया है, एक स्कंद का दूसरे स्कंद से क्या जो है कनेक्शन है, दैट आल्सो विल सी। देन वी विल आल्सो सी द क्रोनोलॉजी ऑफ दिस भागवतम, हाउ भागवतम स्टार्टेड। Actually, Bhagavatam did not start in Canto 1, it started in Canto 2. So, कैसे systematically Bhagavatam जो है शुरू हुई, that also we'll try to understand. And then there are many characters in Srimad Bhagavatam. Just like we see Vidura and Maitreya, we see Yamraji also, we see Prahlad Maharaj, Dhruv Maharaj, we see Maitreya Muni, we see Manu, we see Brahmaji, Shivji, the 24 incarnations of Krishna, Kunti Maharani, Pandavas, Bhishma Pitamaha, and Gopis and Vrindavan Vasis. Then like that many rishis are there. So this Bhagavatam is full of many varieties of characters. You know, so many devtas. So we will be learning many teachings from them, from because Bhagavatam, what it is doing for us, जो कॉन्सेप्ट्स भगवद गीता में बताए गए हैं, through these characters we'll be learning those concepts of Bhagavad Gita. It becomes actually very easy, you know, when somebody is living those concepts. That's why it is compulsory for us to be in touch with a pure devotee.
to be in touch with a pure devotee, because he is a living Bhagavata. He is a living Bhagavata. That's why we say Shri Guru Charana Padama Kevala Bhakati Sadma Vande Mui Savadhana Mate Hai. Shri Guru Charana Rati Aise Uttama Gati Ye Prasadit. So when we have attachment to the lotus feet of a Mahabhagavata, automatically that Divya Jnana Hriday Prakashita, all the Vedic literatures, Jnana, it gets revealed into our heart. It's very difficult actually to understand Bhagavatam, as I was discussing today afternoon with our Bhakti Vriksha boys. It's very difficult actually to understand Bhagavatam. First Bhagavad Gita, when we read, then we'll forget after some time. Then you read Bhagavatam, again it's very, you can say very big. You start Bhagavatam, and then till you'll reach first canto, somehow you complete second canto, third canto, you forget actually what I'm reading. Yes, it happens many times. Yes sir. आप में से अगर कुछ लोगों ने कोशिश भी किया होगा, after few chapters or few cantos only we forget what we are reading, because so big actually. I was because I give some time to the boys and to some people, family members, Bhagavatam, whenever, as soon as I realize that now it is time for him to read Bhagavatam. So then I asked one boy, Acha, please we'll read Bhagavatam today, bring Bhagavatam. So actually I observed that he brought Bhagavatam, but his whole पूरा जो कार्टन बॉक्स होता है वो लेके आते हैं. And for my surprise, he took Bhagavatam first canto, उसका first volume, and he's just opening. First time he's opening. उसका जो पॉलिथीन है उसको रिमूव कर रहा है. I asked, what is this? You have not opened Bhagavatam. इतने समय पहले आपको भागवतम दिया था. Yes, Prabhu, I was actually very much eager to read Bhagavatam. Then why didn't you open it? Actually, I was waiting for you to come, you ask and read Bhagavatam together. So you see, so many times actually we have desire, but we are not able to even start sometime. And अगर हम शुरू करते हैं तो कहाँ तक पहुंचे हैं वो खत्म हो जाता है, भूल जाते हैं और फिर से कहते हैं कि चलो उसको दोबारा से शुरू करते हैं. Right? So it's a very that's why in message also I told it's very difficult also sometimes to read Bhagavatam alone. That's why Shukdev Goswami and these all sages, they were together. तो परिस्थिति अगर आप देखें उस वक्त की जो परिस्थिति थी क्या थी, और सब एक्सॉल्टेड सेजेस बैठे हुए हैं, नारद मुनि बैठे हुए हैं, वेद व्यास जी बैठे हुए हैं, and many other great sages, Shukracharya, Dhruv, Brahaspati, and all other big exalted sages are there. और वो सब के सब जो है उनको पता है कि यहाँ पर जो है बहुत ही बड़ा कुछ होने वाला है, यहाँ पर बहुत ही बड़ा कुछ होने वाला है. परीक्षित महाराज जो पूरे संसार के राजा है, जिनके अंडर पूरी की पूरी प्रजा है, हर एक आदमी, हर एक जानवर उनके अंडर में है. He is taking संन्यासा and he left all his wealth. सारा सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने. And where he is sitting now? He is sitting near the Ganges, and वहां पर बैठ के he asked to all the sages, please tell me what shall I do. He asked 2 questions. वो 2 क्वेश्चंस क्या पूछते हैं हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. पहला प्रश्न वो पूछते हैं, जितने भी लोग जो संसार में रह रहे हैं उनकी फर्स्ट ड्यूटी क्या है. सेकंड क्वेश्चन he asked, what is the duty of a person who is about to die. क्योंकि वो क्या है, वो उनकी मृत्यु होने वाली है. So he's thinking about himself. He's taking his own example so that in future also people will be dying. So actually it is one question only. अगर Prabhupada tells in purport, though Parikshit Maharaj is asking 2 questions at that place, but it is one question only, that what is the duty of a person who is about to die. And then there is entry of Shukdev Goswami. Shukdev Goswami, who is completely naked, इसने कोई भी कपड़े नहीं पहन रखे हैं. और जो शुकदेव गोस्वामी है, he is a 16-year-old boy, young boy. और जो है आसपास में काफी सारे जो
छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं इनको घेरे हुए हैं, बहुत ही दिखने में सुंदर है। उनकी आंखें जो उसमें वर्णन आ रहा है कमल के पत्तों के समान है, हाथ लंबे लंबे हैं। उनका जो वर्ण था वो भगवान कृष्ण के जैसा उनका वर्ण था। तो सारे के सारे जो बाकी के जो लोग थे, जो जनरल जो आम जनता थी, वो शुकदेव गोस्वामी को पागल जैसा समझी थी, वो क्योंकि भगवान के जो है भाव में पूरी तरीके से खोए हुए थे। तो जैसे ही वो देखते हैं, इनफैक्ट कुछ लोग उन पे पत्थर भी फेंक रहे हैं, कुछ लोग उन पे मिट्टी फेंक रहे हैं, कुछ लोग उन पे और मलिन चीजें फेंक रहे हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी इनसे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं थे। तो जैसे ही सुखदेव गोस्वामी वहां पर आते हैं, तो स्वयं परीक्षित महाराज उनको खड़ा होके और उनको आदर सत्कार करते हैं। सारे ऋषि मुनि वहां पे खड़े होते हैं, और ये देखकर जो भी वो जो लोग थे जो सुखदेव गोस्वामी का मजाक जैसा उड़ा रहे थे, वो उनको एकदम से झटका लगता है कि सुखदेव गोस्वामी इतने महान जो है, अद्भुत महाभागवत है, उनको इस चीज का एहसास नहीं था, और वो जो है अवाक से रह जाते हैं। फिर उनको गद्दी दी जाती है और आसन पे बैठाया जाता है, सुखदेव गोस्वामी को बैठा के, और उनसे भी यही प्रश्न पूछते हैं कि मेरा जो है अंतिम समय है, अभी मुझे इस 7 दिनों के अंदर मेरे सबसे बड़ा मेरा कर्तव्य क्या है। ये आज दिस क्वेश्चन। और फिर जो है दूसरे स्कंद से वरियान एश ते प्रश्न, तो वो बोलते हैं कि आपका ये जो प्रश्न है बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये सभी लोगों के लिए आपने पूछा, केवल आपके लिए नहीं पूछा है। तो भागवत जो है, जो जो जीवित भागवत होते हैं, एक होता है पर्सन भागवत, एक होता है बुक भागवत, रूपा जी बताते हैं। तो जीवित भागवत एक्चुअल में जो बुक भागवत है, श्रीमद् भागवत है, उसको जीता है, अपने जीवन में जीता है। वो केवल खुद के लिए नहीं सोच रहा है, वो सभी प्राणियों के लिए संसार में सोच रहा है। जिस प्रकार से प्रभुपाद जी बोल रहे हैं मैं अमेरिका क्यों जा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अमेरिका कोई बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए जा रहा हूँ। प्रभुपाद वाज है ना लिविंग नाइसली इन वृंदावन, बट फिर भी वो अमेरिका क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उनको जो है बाकी जगह पे लोगों को भक्त बनाना है। सो भगवान जो है, जितनी चिंता भगवान को उससे ज्यादा चिंता पर्सन भागवत को होती है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों को भक्त बनाना है। वही चीज यहाँ पे हम सुखदेव गोस्वामी में भी देखते हैं। सुखदेव गोस्वामी चाहते तो वो उस जगह पे नहीं आते, वो कहीं पे भी जा सकते थे। तो परीक्षित महाराज उनको कहते हैं कि मेरे पूर्वजों पे, जैसे कि पांडव जो उनके पूर्वज थे, उन पर भी मेरी भगवान भगवान कृष्ण की बहुत विशेष कृपा थी। मुझे लगता है उन्हीं कृपा की वजह से, कृष्ण की कृपा की वजह से आप यहाँ पर पधारे हैं, उन्होंने आपको जो है उत्साहित किया है, तभी जाके आप यहाँ पे पधारे हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो इस तरीके से जो है फिर भागवतम की शुरुआत होती है दूसरे स्कंद से। वो हम लोग धीरे धीरे उसमें आगे देखते जाएंगे। हम देखते हैं फिर इसके बाद में रिपीटेशंस ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड एम्फेसिस ऑन देम। तो कई बार कुछ कॉन्सेप्ट्स को हमको बार बार रिपीट होते हुए हम लोग देखेंगे, और उस पे बहुत एम्फेसिस डाला गया है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि हम लोग अभी इतने शुद्ध नहीं हैं कि हम एक ही बार में इन कॉन्सेप्ट्स को समझ जाएं। इनफैक्ट भगवत गीता में भी कुछ जो चीजें हैं, कुछ मुख्य बिंदु हैं, उनको बार बार भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी, चाहे आप भीष्म पितामह के बारे में, आप उनका जब वो जो मृत्युशैया पे लेटे हुए हैं, तब आप उनके बारे में जब आप उनके जब सिद्धांतों को जब आप सुनेंगे, या जब युधिष्ठिर महाराज जब अपना जो है शरीर छोड़ रहे हैं भगवान के, जो है अब वापस वो जो है गोलोक वृंदावन जा रहे हैं, या फिर आप जो है और किसी को इस तरीके से जब देखेंगे, ध्रुव महाराज एंड ऑल दैट, तो आपको इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट है वो देखने को यहाँ पर मिलते हैं। नेक्स्ट, सो it comes in one of the shlokas that जो श्रीमद् भागवतम है, this is the body of Krishna। तो एक जो प्रश्न भागवतम में आता है वो ये आता है कि भगवान कृष्ण तो अभी चले गए हैं, तो कलयुग के अंदर धर्म जो है वो कहाँ से सीखने को मिलेगा हमको। तो यू सी द पोटेंसी ऑफ दिस भागवतम, ये कितना महान लिटरेचर है। बहुत सारे बुक्स हमको इस संसार में देखने को मिलते हैं, उस उन सारे बुक्स में कुछ ना कुछ बातें होती है, लेकिन वो बातें कभी भी हमको इतना फायदा नहीं पहुंचा सकती जितना कि श्रीमद् भागवत पुराण में पहुंचा सकता है।
ये हमारे लिए रियल में वास्तविक जेम है, वास्तविक हीरा है ये। तो श्री कृष्ण का ये शरीर किस प्रकार है वो बतलाया गया है। पादो यदेयो प्रथम द्वितीयो तृतीय तूर्यौ कथे कथितौ यद कुरु नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठो भुञ्जान्तरं दूर युगलम तथा नौ कंठम तु राजन नवमो यदीयो मुखारविंदम दशम प्रफुल्लम एकादशो यस्य ललाट पट्टम शिरोपि तु द्वादश एव भाति। तो जिस प्रकार से भगवान कृष्ण का दर्शन करते हैं तो प्रभुपाद जी बतलाते हैं सबसे पहले हमें चरणों का दर्शन करना है, फिर उसके बाद में उनके घुटनों का, फिर जंघा का, फिर उनका नाभि का, फिर उनके छाती का, गर्दन का, मुखार बिंद का, और फिर पूरा उनका दर्शन हमें करना चाहिए। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम जो है उसका प्रथम और द्वितीय स्कंद जो है वो भगवान के चरणार बिंद से, उनके चरणों से उसको जो है दर्शाया गया है। तृतीय और चतुर्थ जो स्कंद है वो उनकी जंघा का प्रतीक है, उसको और डिटेल में हम लोग समझेंगे। पांचवा जो स्कंद है वो जो है उनकी नाभि को दर्शाता है। छठवां स्कंद उनकी छाती को दर्शाता है। सातवां एवं आठवां स्कंद जो है उनकी भुजाओं को दर्शाता है। नौवां स्कंद जो है उनके गले को दर्शाता है, ग्रीवा को। और 10वां उनके मुखारविंद को, 11वां उनके जो है माथे को, और 12वां उनका सिर को। तो इस तरीके से ये पूरा भागवतम जो है ये भगवान कृष्ण से अभिन्न है। धर्म ने जो है किसकी शरण ग्रहण की है? भागवतम की शरण की है। भागवतम एंड भगवान में कोई अंतर नहीं है एक्चुअली। जैसे कि भक्त जो है भगवान को ग्लोरीफाई करने में लगा रहता है, उसी तरीके से यहाँ पर भक्त जो है भगवान कृष्ण का ही ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। और वो पूरा ग्लोरिफिकेशन ही भागवतम है। भक्त क्या कर रहे हैं यहाँ पे? भगवान कृष्ण का जो है क्या कर रहे हैं? ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। सो दैट इज नन अदर देन कृष्णा। भगवान कृष्ण का नाम, भगवान कृष्ण की लीलाएं, भगवान कृष्ण के डिवोटीज की लीलाएं, भगवान कृष्ण का धाम भगवान कृष्ण से अलग हो ही नहीं सकता है, सब एक ही है। राइट? सो देयर इज अ ब्यूटीफुल पास्ट टाइम, बहुत सुंदर एक लीला हमको सुनने को मिलती है। एक भगवान के बहुत अच्छे भक्त हुए पुनरुत्थानम करके दक्षिण भारत में। ये कवि भी थे, लेकिन इनका जो उच्चारण आमतौर पर जो हुआ करता था इतना सुंदर, और कह सकते हो कि बहुत एक्यूरेट नहीं हुआ करता था। लेकिन इनकी भक्ति की वजह से, जो भगवान कृष्ण के प्रति इनकी जो भक्ति थी वो अटूट थी। भगवान के शुद्ध भक्त थे। वो अपने एक जो है अपनी एक कविता में वो लिखते हैं, while baby Krishna is playing in my mind, do I need a baby of my own? वो उनका जो है ये मलयालम में उनका ये कविता है। तो वो लिख रहे हैं कि जब मेरे मन में पहले से ही भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं जो मेरे बच्चे के जैसे हैं, मुझे और किसी और बच्चे की क्या जरूरत है? एक्चुअली उनके पास में कोई बालक नहीं था, उनकी कोई संतान नहीं थी, बट ही वॉज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ रिपेंटेंस फॉर दैट। तो क्या होता है, हेयर वील अंडरस्टैंड द ग्लोरी ऑफ भागवतम। एक बार की बात है कि जो ये पुनरुत्थानम है उनको हाफ पोइट कहा जाता है, क्योंकि जो जो लर्नेड जो पंडित्स होते हैं साउथ इंडिया में वो बहुत पर्टिकुलर होते हैं कि नहीं, श्लोक का जो है उच्चारण बहुत अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज देयर इज नो यूज ऑफ रीडिंग द ग्रेट लिटरेचर। तो लोग उनके ऊपर हंसते थे, इस उनको हाफ पोइट, अर्ध कवि कहा जाता। तो पुनरुत्थानम एक बार की बात है कि दक्षिण भारत के किसी एक मंदिर में यात्रा करते 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 पहुंचते हैं। कोटियार करके एक जगह है जहाँ पर भगवान कृष्ण, भगवान शिव का मंदिर था। तो उस मंदिर की खास बात ये थी कि वो साल के कुछ दिनों के लिए ही खुला रहता था, बाकी दिनों वो बंद रहता था। तो जब ये वहां पहुंचते हैं, वहां पहुंचकर जो है काफी सारे लोग जो हैं वहाँ मौजूद हैं। उनमें से कुछ लोग उनको पहचानते हैं और उनसे आग्रह करते हैं आप श्रीमद् भागवत पुराण का जो है हमें आस्वादन कराना शुरू करिए। तो वो बड़े भाव से, भक्ति से भगवान कृष्ण के प्रति जो है के अंदर है उससे वो उसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो जब वो भागवतम पढ़ रहे हैं, सबको सुना रहे हैं, तो करते 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 कुछ दिनों बाद, 2 4 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन, महीना बाद, प्रोबेबली
वो दशम स्कंद में पहुंचते हैं, और दशम स्कंद में जैसे हम लोग कृष्णा बुक में भी देखते हैं, प्रभुपाद जी दशम स्कंद का वो क्या है, संक्षिप्त में है पूरा। तो उसके अंदर रुक्मणी वाला जो अध्याय वो आता है। भगवान कृष्ण है और रुक्मणी है, रुक्मणी माता जो है भगवान कृष्ण को जो है चामर झल रही है। झलते 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 अचानक से भगवान कृष्ण रुक्मणी माता से कहने लगते हैं कि देखिए रुक्मणी, मैं हूं एक ग्वालवाल, और आपको तो बहुत सारे राजा आपकी सुंदरता को देख के आपके पीछे थे, शिशुपाल, जरासंध और न जाने कितने लोग। मैं तो जो है कभी किसी का हुआ ही नहीं, पहले ना माता का हुआ ना पिता का हुआ, यशोदा माता और नंद बाबा को छोड़ के आ गया। उसके बाद में मैंने जो है ब्रज छोड़ दिया था, फिर मैं मथुरा भी छोड़ चुका हूँ। तो तुम जो है मेरे पीछे क्यों पागल हो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। और ऐसा करके बहुत ही लंबा अध्याय है, और वो बतलाते जाते हैं। तो जो रुक्मणी देवी हैं वो बड़ी चिंतित हो जाती है, और वो ऐसा सुन के भगवान कृष्ण लास्ट में इतना भी कह देते हैं, अभी अगर आपको जाना है तो आप जाके किसी और से विवाह कर सकती हैं। जबकि रुक्मणी देवी पहले से ही जो है वो माँ बन चुकी हैं, प्रद्युम्न आदि जो है उनकी संतानें हैं। तो पर रुक्मणी देवी भगवान कृष्ण से इतना प्रेम करती है, इतना स्नेह रखती है कि वो यह सुन के ही मूर्छित हो जाती है। और यह इस जगह पर पुनरुत्थानम जो है वहां पर अपना जो एक जो डोरी रहता है, बुकमार्क रहता है, वो लगा देते हैं कि अगले दिन से हम यहाँ से शुरू करेंगे। अगले दिन जब वो वापस मंदिर में पधारते हैं, सब भक्त लोग वहां पर एकत्रित हो जाते हैं, सबके सामने फिर से वो भागवतम पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन जैसे ही वो खोलते हैं भागवतम बुकमार्क निकालते हैं, तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि वापस से वो जो बुकमार्क है पता नहीं किसी ने उस अध्याय की शुरुआत में रख दिया, रुक्मणी और भगवान कृष्ण का संवाद। तो इनको बड़ा आश्चर्य होता है, पर कोई बात नहीं, वो वहीं से पढ़ना शुरू करते हैं। वहीं पे दोबारा पहुंचते हैं, फिर से वो अगले दिन आते हैं तो दोबारा से वहीं पर वो बुकमार्क लगा हुआ है। ऐसा करके काफी दिन निकल जाते हैं, और मंदिर के बंद होने का समय आ जाता है। वो मंदिर फिर अगले साल खुलेगा। सब लोग वहां जो है वहां से निकलते हैं, मंदिर के दरवाजे और ताले पूरे अच्छी तरीके से बंद कर दिए जाते हैं। और ये कुछ दूर चलने के बाद में इनको महसूस होता है कि मेरा जो भागवतम पुराण है, क्योंकि उन दिनों में भागवत पुराण ऐसा नहीं मिलता था कि टाइप कर लिया, एक एक जगह से हमें नहीं मिला, ऑर्डर कर दिया वो आ गया। एक कॉपी ही मिलना बड़ा मुश्किल हुआ करता था। अगर आपको अगर चाहिए तो आपको जहां पर उपलब्ध है वहां जाके पूरा भागवत आपको अपने हाथ से लिखना पड़ेगा। उन दिनों में ऐसा हुआ करता। तो वो वापस से दौड़ते हैं मंदिर की तरफ, लेकिन जब तक वो पहुंचते हैं सब लोग जा चुके हैं, मंदिर का ताला लग चुका है, अब कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। तो अचानक से उनको कुछ आवाज सुनाई देती है मंदिर के अंदर से। वास्तव में मंदिर के अंदर जब वो पूरा झांकते हैं, कहीं से छोटा सा उनको एक छिद्र दिख जाता है, शायद से ताले के छिद्र से वो जब झांकते हैं तो उनको बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होता है ये देख के कि वहां शिव जी बैठे हुए हैं, और वो माता पार्वती को श्रीमद् भागवत पुराण का आस्वादन करा। और यह देख के उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और वो वही अध्याय पढ़ रहे हैं, रुक्मणी देवी और भगवान कृष्ण का संवाद। अब उनको समझ में आ जाता है पूरी बात। तो वो पढ़ रहे हैं, उसके बाद में माता पार्वती को वो पूरा पढ़ने के बाद में पूछते हैं कि आपको कैसा लगा जो मैंने आज भागवत का आपको श्रवण करवाया है। माता पार्वती कहती है कि हाँ है, बहुत अच्छा था, बहुत आनंद आया स्वामी, लेकिन इतना आनंद नहीं आया जितना कि पुनरुत्थानम ने बोला। तो शिव जी भी कहते हैं कि हाँ, उनके जो जो भागवत प्रवचन है उसमें जितना आनंद आता है उतना आनंद तो मुझे आज तक कहीं नहीं आया। तो यह देख के पुनरुत्थानम जो है जोर से भगवान कृष्ण का नाम निकाल देते हैं, कृष्णा, लाइक दैट ही बिकम्स ओवरवेल्म्ड विद एक्सटेसी। एंड फिर जब वो दोबारा तब तक झांकते हैं, तब तक भगवान कृष्ण पार्वती देवी वहां से अंतर ध्यान में आते हैं। तो हम देख सकते हैं कि श्रीमद् भागवत पुराण जो है बहुत बड़े बड़े जो पर्सनैलिटीज हैं, बहुत बड़े बड़े जो इस पूरे क्रिएशन के अंदर जितने बड़े बड़े लोग हैं, संत हैं, या आप कह सकते हो देवी देवता हैं, या फिर भगवान स्वयं, उन जो श्रीमद् भागवतम है उसको बहुत सम्मान करते हैं, उनको बड़े चाव से सुनते हैं। राइट। सो अभी तक हम लोग देख सकते हैं कि सृष्टि में न जाने कितने ही लोगों ने कई बार भागवत पुराण को एक दूसरे को कहा है, सुना है। जस्ट लाइक
जैसे कि अभी हमने बताया, माता पार्वती और शिव जी के बीच में आमतौर पर भागवतम पे ही चर्चा होती है ज्यादातर। जब भी वो कभी चर्चा करते हैं तो भागवतम के ऊपर चर्चा करते हैं। मैत्रेय मुनि बुद्ध जी के बोलते हैं। चार कुमार भी जो है भागवतम जो है श्रवण करते हैं। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बतला रहे हैं, सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि को बतला रहे हैं। राइट। तो इस तरीके से कई बार भागवतम आज तक बोला जा चुका है। जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे, इसमें 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय हैं, और 12 कैंटो है, 12 स्कंद है। परंतु वास्तव में इसके अंदर कितने श्लोक है? वास्तव में इसके अंदर 1 लाख श्लोक है। तो शिला मध्वाचार्य इस चीज को बतलाते हैं कि वास्तव में इसमें 1 लाख श्लोक हैं। और जब जब जैसे जैसे अलग अलग द्वापर युग में जो जो लीलाएं होने वाली है, भगवान कृष्ण पूरी तरीके से अभिज्ञ स्वराट उन्हें कहा गया है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, कोई उनको जो है उनके ऊपर कोई नहीं है। तो जब चाहे जैसी लीलाएं कर सकते हैं। तो कभी किसी युग में क्या लीला की, किसी युग में क्या लीला की, उसके हिसाब से वेद व्यास जी हर बार उसमें से 18,000 श्लोक निकाल के उनको चयन करके और उसका भागवतम उसको कहा जाता है। तो इस तरीके से, so I just remember a beautiful pastime of Srila Prabhupada. तो वन डिवोटी फर्स्ट, उससे पहले मैं आपको एक और पास्टाइम बताना चाहूंगा। वन डिवोटी ही शेयर्स के he has read चैतन्य चरितामृता एंड श्रीमद् भागवतम मोर देन 50 टाइम्स। उन्होंने 50 बार से ज्यादा भागवतम और चैतन्य चरितामृता पढ़ा है। आप बहुत सरप्राइज होगा, कैसे ऐसा पॉसिबल है? 50 बार से ज्यादा एक लाइफ में कैसे संभव हो सकता है? तो डिवोटी बतलाते हैं कि मैं पहले बीबीटी में था। बीबीटी में जब मैं था तो प्रभुपाद जी की कोई भी बुक जैसे छपती थी तो तुरंत मैं उसको पढ़ता था। एक तरीके से वो मेरी सेवा भी थी, मुझे चेक भी करना होता था कि वो सब ठीक है। और दूसरा, मैं जस्ट एक पढ़ने के लिए पढ़ता था कि प्रभुपाद की नई बुक आई है करके। सो लाइक दैट, जो भी छोटी छोटी किताबें हैं प्रभुपाद जी की, उन्होंने कई बार पढ़ ली। भगवत गीता भी कई बार पढ़ लिया, भागवतम कई बार पढ़ा, चैतन्य चरितामृत 50 बार से ज्यादा पढ़ लिया। तो प्रभुपाद जी जो है वहां पर एक बार नोटिस करते हैं कि उनके जितने भी शिष्य हैं उनका उच्चारण बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि संस्कृत कभी भी किसी ने बचपन से इतना ज्यादा पढ़ा नहीं। तो प्रभुपाद जी जो है सभी को कहते हैं कि कम से कम एक अध्याय भागवतम का, उसका जो जितने भी श्लोक है उसको आपको पूरा दोहराना है, उसका उच्चारण करना है। बोले बाकी लोगों ने पता नहीं इसको कितना सीरियसली लिया नहीं लिया, पर मैंने उसको बहुत सीरियसली ले लिया। और मैं हर दिन आज तक जो है, वो भक्त बोलते हैं, मैं हर दिन आज तक उसका उच्चारण करता आया हूँ। और मेरे मन में फिर ये उठने लगा, अच्छा जब उच्चारण कर रहा हूँ तो चलो इसका तात्पर्य भी पढ़ लेते हैं, इसका अर्थ भी पढ़ लेते हैं। और ऐसा करूँ को प्रभुपाद की बुक्स में इतना आनंद आने लगा, भागवतम में और चैतन्य चरितामृत में इतना आनंद आने लगा, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। 50 बार से ज्यादा उन्होंने श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत पढ़ा। प्रभुपाद जनरली हमें कहते हैं कि 10 बार भगवत गीता, 3 बार भागवतम और 1 बार चैतन्य चरितामृत हमें हमारे लाइफ टाइम में जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए। तो प्रभुपाद वाज बेसिकली लिविंग भागवत। तो भागवतम का जो उद्देश्य क्या है वो हमें समझ है, जैसे कि हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे। भागवतम का उद्देश्य है सारे के सारे जितने भी लोग हैं उनको भगवान का भक्त बनाना। और इस पास्टा में हम देखेंगे प्रभुपाद कितना चिंतित थे सबको भक्त बनाने के लिए। One morning in Bombay, while I was sitting silently chanting japa in Prabhupada's back room, and Prabhupada was reading one of his books in front room, his disciple Panch Dravida Swami came to visit him. ये हरीश हरिदास प्रभु हैं जो कि प्रभुपाद के पर्सनल सेक्रेटरी हैं। तो प्रभुपाद जी का जो रूम है बॉम्बे में, उसके पीछे में कोई जगह होगी जहाँ बैठ कर जप कर रहे हैं। और पंच द्रविड़ स्वामी प्रभुपाद जी से मिलने के लिए आते। पंच द्रविड़ स्वामी हैड बीन प्रीचिंग इन साउथ इंडिया। पंचतत्व स्वामी कहाँ पे प्रीचिंग कर रहे हैं? साउथ इंडिया में। एंड आफ्टर विजिटिंग प्रभुपादा फॉर ए फ्यू डेज ही वाज अबाउट टू सेट ऑफ अगेन। तो वो प्रभुपाद जी से मिलने के बाद में फिर से कहाँ जाने वाले थे? कहीं पर वापस से साउथ इंडिया में प्रीचिंग के लिए जाने वाले थे। Prabhupada gave him encouraging words and blessings. He told him that the mission of the Krishna consciousness movement is to turn a section of population into ideal man. तो ये जो कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट का जो मिशन है वो क्या है? एटलीस्ट इतनी बड़ी जनसंख्या है, इसमें से कुछ लोगों को हमें आइडियल मैन बनाना है।
Prabhupada said we cannot expect everyone to join. ऐसा नहीं हर कोई व्यक्ति मंदिर आ जाएगा, ज्वाइन कर लेगा, फुल टाइम मिशनरी बन जाएगा. No. If by this way or that way you can bring one person to Krishna, he is very pleased. Who is very pleased? Krishna is very pleased to have one of his sons returned. अगर हम एक भी व्यक्ति को भक्त बना देते हैं तो हमारा काम फिनिश होगा. You can bring one person to Krishna. Is very pleased to have one of his sons return. Panchadravida Maharaj asked how he could prepare himself to preach against South Indian Pandits who knew the Shastras thoroughly. तो पंचद्रविड़ स्वामी बोलते हैं कि जो साउथ इंडियन जो पंडित्स हैं जिनको शास्त्र बहुत अच्छे से रटे हुए हैं उनके अगेंस्ट वो कैसे प्रीचिंग करें, क्योंकि वहां पर ज्यादातर मायावाद वो लोग बोलते हैं. तो जैसे प्रीच करने जाते हैं मायावाद फिलोसफी बोलना शुरू कर देते हैं. Prabhupada replied that if he could just memorize 30 of the key verses of Bhagavad Gita, he would be able to defeat Mayavadi arguments. अच्छे से 30 श्लोक अगर आपने भगवत गीता के समझ लिए हैं, उनको आपने याद कर लिया है, तो आप मायावादी आर्गुमेंट्स को डिफीट कर सकते हो. Prabhupada also emphasized that Panchadravida Maharaj should preach on the basis of Varnashram Dharma, explaining that in order for society to be saved, it should be organized according to the 4 orders and classes. So Prabhupada is basically emphasizing कि आपको कोशिश करना है कि लोगों को भक्त बनाना है, ब्राह्मणिकल क्वालिटीज उनके डेवलप करनी है बेसिकली आपको. So basically I request you all here, Prabhupada is saying that we should know at least 30 verses of Bhagavad Gita. You can, अगर आपको, I hope कि आपको ज्यादातर लोगों को याद होगी, नहीं याद है तो आप याद करना शुरू करिए. कोशिश करिए हर दिन आप एक एक 2-2 श्लोक याद कर सके. ग्रुप में ऑलरेडी डालना शुरू कर दिया है हमारे बॉयज ने, आपको पता होगा. और भागवतम के भी कुछ कुछ श्लोक आप याद करना शुरू करिए. जस्ट लाइक 3 वर्सेस, फर्स्ट 3 वर्सेस ऑफ भागवतम फर्स्ट कैंटो का बहुत जरूरी है. डे आफ्टर टुमारो प्रॉब्ली विल स्टार्टिंग द फर्स्ट कैंटो समरी. कल हम पूरे 12 स्कंद का समरी देखेंगे. Then, hearing Srila Prabhupada gave his sannyasi disciple impetus to go and preach, I again felt the desire to leave my secretarial duties and go preaching in US colleges. तो जो हरीश हरिदास है उनके अंदर भी बबल हो रहा है कि it was bubbling from inside. I should also preach. I should go to US and preach in the colleges. तो उसके लिए उनको प्रभुपाद की secretarial duties छोड़नी पड़ेगी. तो जैसे ही उनको ये instruction मिला, go and preach, he was also very inspired. I recalled how I had been doing that service formerly, and I vowed that if given another chance, I would try harder. हमें एक्चुअली ये भागवतम का स्पिरिट है. सुखदेव गोस्वामी सब छोड़ के वहां पर परीक्षित महाराज को प्रीच कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम. परीक्षित महाराज वहां पर क्यों उस श्राप को स्वीकार किए? वो इसलिए स्वीकार किए ताकि हम लोग भागवतम सुन सके, हम लोग प्रीच हो सके. So this is the spirit of Krishna consciousness movement, which is coming down since creation, from Krishna to Brahma, Brahma to Narad Muni. Narad Muni also he had been preaching throughout his life, you can see, right? पूरा जो हमारा जो गुरु परंपरा है उसमें यही स्पिरिट है जो आगे ट्रांसफर किया गया. प्रीच प्रीच प्रीच, दैट इज द होल एसेंस ऑफ श्रीमद् भागवतम. This is the important, most important service which even Krishna also is telling in Bhagavad Gita 18th chapter. सबसे ज्यादा प्रिय भक्त मेरे को कौन है? नचे तस्मात् मने शिशु प्रिय कृतमः, जो मेरे इस मैसेज को दूसरे लोगों को. But then checked myself, वो बोलते तब मैंने अपने आप को रोका. Why should I be thinking of any other service except that assigned to me? जो मेरे को सर्विस मिल गया है उसको मैं अच्छे से करूं. Now it's a very important concept here. Whatever service sometime हम लोग को लगे कि प्रभु मुझे इस सर्विस में I am not happy with this kind of service. I want to change my service. I want to get it changed. But no, आपकी जो भी immediate authority ने आपको जो सर्विस दिया है हमको बिना किसी उसको करना चाहिए. And through that service only will become perfect. Through that service only will become perfect. Sometime we may be thinking, no, I will be able to do that service better. This is not our actually job. हमारा काम क्या है कि जो हमारे इमीडिएट अथॉरिटी हमारे सिस्टम में प्रभुपाद की ब्लेसिंग्स के थ्रू सर्विसेज आती है हर किसी के पास में. सो जो भी सर्विस हमको मिलती है उसको हमको ऑनेस्टली ईमानदारी के साथ हमें करना चाहिए. After Panchadravida Maharaj left, I went back to chanting Hare Krishna and praying to Krishna to treat me as he liked for my betterment. So this is actually consciousness of a devotee. कि जो भी सर्विस मेरे को मिल रही है उसे मुझे अच्छे से करना है.
मुझे किसी तरीके का आर्ग्यूमेंट नहीं करना है हमारी इमीडिएट अथॉरिटी से कि नो प्रभु इस तरीके से करना चाहिए, उस तरीके से करना चाहिए. नो, वॉट एवर इज कमिंग दैट इज बेस्ट. टू इंसिस्ट ऑन अ सर्टेन सिचुएशन इन डिवोशनल सर्विस वुड बी सेंस ग्रेटिफिकेशन. नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करते हैं ना, ये सर्विस जो है इस तरीके से करेंगे मैं, या फिर मुझे ये नहीं वो वाली सर्विस चाहिए. तो प्रभुपाद के अकॉर्डिंग इट इज सेंस ग्रेटिफिकेशन, नॉट भक्ति. इज नॉट भक्ति एक्चुअली. Since these deliberations were on my mind, I often found relevant passages in my reading that brought the issue into focus. तो जब जब हम जैसा हमारा माइंड कह रहे हैं उसके अगेंस्ट जाके जब हम प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस, हमारे इमीडिएट अथॉरिटीज के इंस्ट्रक्शन को जब फॉलो करते हैं तब हमें रियलाइजेशन आते हैं. अदरवाइज वी बिकम्स मोरोज, वी बिकम्स अनहैप्पी, एंड इनफैक्ट हमारे रियलाइजेशन उल्टा डल पड़ जाते हैं. So the important learning from this pastime is just like Parikshit Maharaj accepted the curse, just like Shukdev Goswami accepted whatever situation was, and many other devotees. Similarly, हमारी लाइफ में भी आज भी भागवतम जो है तभी हमें समझ में आएगी जब हम हमारे जो है जो गुरुदेव हैं प्रभुपाद जी, इनके इंस्ट्रक्शंस को एज इट इज फॉलो कर रहे हैं, हमारे इमीडिएट अथॉरिटीज के इंस्ट्रक्शंस को एज इट इज फॉलो कर रहे हैं, और फिर जो है रिलेवेंट चीजें, उससे जुड़ी हुई चीजें हमें प्रभुपाद की बुक्स में पढ़ने को मिल जाएगी जो हमारे रियलाइजेशन को और स्ट्रॉन्ग कर देगी. In the mornings, for example, Prabhupada had asked different devotees to read out loud from Krishna book while he walked, and one of the passages stood out in my mind. Prabhupada जी जब मॉर्निंग वॉक पे जाते थे तो कृष्णा बुक पढ़ते थे कभी कभी, तो उसमें से एक जो है ना इंसिडेंट है उनको याद रह गया. We had been reading about Krishna stealing the clothes of the unmarried gopi girls. And Srila Prabhupada had commented that they would do whatever Krishna asked. So, in one sense, stealing the clothes of unmarried gopi girls is unethical, unmoral, immoral actually. लेकिन that is morality is not the spirituality. Krishna जो करते हैं that is final, right? That is the most important thing. That is spirituality. We actually glorify Krishna for this pastime. So Prabhupada had commented that they would do whatever Krishna asks. क्या अच्छा है क्या बुरा है that is not our concern. Whatever Krishna will ask, we will do. That is love. जैसे कि एक प्रेमी प्रेमिका के कहने पर कुछ भी कर सकता है, उसी तरीके से हमें जो कृष्णा ने बोल दिया that is final, said Prabhupada. You can do whatever you want and still I love you. That is how Chaitanya prayed. Lord Chaitanya prayed. रम्या चित्त है ना, आश्लिष्य वा पिनष्टुमा अदश नाम करो तुबा यथा तथा वा विदधातिलम पटु मत प्राणनाथस्तु ना एव फला. तो जो भी आप चाहे जैसा मेरे साथ करे, बट प्लीज डोंट गो अवे फ्रॉम मी. है ना, आप हो सकता है दर्शन दे ना दर्शन दे, बट ओके नो प्रॉब्लम, बट accept me as your servant. Otherwise, it becomes business exchange. I particularly took note of the passages praising unalloyed surrender to the Guru. Often I engage in dialogues with myself, sometimes speaking in favor of the desires to go and preach, and sometimes admonishing myself for considering anything absent the duties of the personal servant. उनके दिमाग में चलता रहता क्या करूं क्या करूं. But to speak back and forth to myself was not conclusive. Since I could not forget the idea of doing another service, I realized that sooner or later I would have to bring my doubts before Srila Prabhupada. कभी भी कभी वो सोचते प्रभुपाद से मैं परमिशन लूंगा preaching के लिए. At this time, now again one more thing is starting, one more chapter is starting. At this time, Tamal Krishna Goswami came to Prabhupada and asked permission to leave his assignment as GBC for India, to go traveling and preaching in America. GBC is a big responsibility, right? तो तमाल कृष्ण गोस्वामी जो हैं वो प्रभुपाद से परमिशन लेने के लिए आया कि मैं जीबीसी अपना ड्यूटी छोड़ना चाहता हूँ, मैं ट्रैवल करते हुए प्रीचिंग करना चाहता हूँ अमेरिका में. His friend Vishnujan Swami had been staying with him in Bombay and had told him how great the preaching was in America. Vishnu Jana suggested they go traveling together in a bus, holding festival, distributing books, and recruiting devotees. So it is very, adventurous. Preaching is always very adventurous. Prabhupada seemed reluctant at first, but then agreed and gave permission. अब जैसे इनको परमिशन मिलता है उनको लगता अरे प्रभुपाद ने इनको परमिशन दे दिया, then it is my turn now. He even said, yes, you can always be a manager. Preaching is a matter of realization. So we can manage somehow that, but preaching is a matter of realization.
प्रीचिंग कब कर सकते हैं? जब आपको कोई चीज रियलाइज हो. सिंपली स्पीकिंग will not work actually. It's a matter of realization. Seeing Tamal Krishna get permission impelled by own thinking that direction. So actually we all should carry forward this inspiration of preaching. जितना हो सके हमें preach करने का कोशिश करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को preach करने की कोशिश करना. Then we ourselves will become person Bhagavata. Just like here, what Sukdev Goswami is doing, Kirtanam. Preaching means Kirtanam. तो प्रॉपर टेल्स कीर्तनम मीन्स नॉट ओनली करताल मृदंगा के साथ आप हरे कृष्ण मंत्र गा रहे हैं. इनफैक्ट यू आर प्रीचिंग अबाउट कृष्णा, यू आर टेलिंग अबाउट कृष्णा. यारे देखो तारे को कृष्ण प्रदेश, दैट इज आल्सो भागवतम ओनली. Seeing Tamal Krishna get permission impelled my own thinking in that direction. On several occasions, I was present when Tamal Krishna spoke to Prabhupada about the plans to preach in America. Without preaching, said Prabhupada, ISKCON will become rubbish. अगर हमारे अंदर ये स्पिरिट नहीं है प्रीचिंग की, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते थे, यू आर एक्चुअली डेड पर्सन, यू आर नॉट लिविंग पर्सन, डेड पर्सन. The management will be at our fingers if the devotees simply follow the rules, chanting and talking, taking prasada. So this is very important. 4 regulatory principles हमें follow करना है, 16 on chanting करना है, मंगल आरती हमें डेली करना चाहिए, and only prasadam, nothing else, whatever may happen. This should be our vow for life and for a complete lifetime. Actually, preaching is first. Yes, it is good if the presidents and GBCs switch around sometimes. Another time I was present with Tamal Krishna when Prabhupada talked about how he left his home and went preaching. Prabhupada is again telling about the importance of preaching, about Kirtanam, about his personal realization. Okay, his wife is asking, I was thinking, said Prabhupada, how could I benefit everyone? As Bhagavad Gita says, सर्वभूतान. तो प्रभुपाद ने भी अपना घर छोड़ा क्यों? प्रीचिंग के लिए. So I'll just skip. Even at home, as a householder, I was preaching and people were coming. तो प्रभुपाद जी नीचे में अपना कीर्तन करते थे, लोगों को भक्त बनाने की कोशिश करते थे. लेकिन, but my family members were upstairs taking tea. I was very angry with them. I told my wife, you either give up tea or lose your husband. She thought I was joking. But I was determined and took sannyasa. It was actually blessing for Prabhupada. She told, okay, if it is the matter, I'll take tea. Prabhupada asked, tea or me? So she told, okay, tea. So the family took it as a great shock, but now I'm fully satisfied. It is our good fortune, said Tamal Krishna, that you have had this disagreement with your wife and then she chose tea instead of you. Because now we are all saved. तो Tamal Krishna बोल रहे हैं कि आपका वाइफ का मैं थैंक यू करना चाहिए कि उन्होंने उस दिन टी को चूज कर लिया, उसकी वजह से आज हम सेव हो गए, आपने हमारे ऊपर कृपा की. Prabhupada appeared like he was going to say more about his family, but then he said, I do not care to talk about them anymore. मुझे उनके बारे में कोई बात नहीं करनी है. Prabhupada was completely detached from them. You can see this is the actually, you can say, characteristic of a Bhagavat. He's not attached at all to his family, country, society, this and that. Go and preach, remain active. Prabhupada told us, go and preach and remain active. Now, sometime what happens, nowadays it's very hot season, right? So throughout the day, there is nothing to do. So we'll just lie down, we'll start our mobile, watch something and this. So Prabhupada is saying, no, you should be very active throughout the day. You cannot remain dull. You cannot remain dumb. You have to remain very active, Prabhupada told us. And when you are old enough, you can go and sit down in Mayapur and simply chant Hare Krishna. Prabhupada बोल, जब तक तुम जवान हो तब तक तुम preaching करो, remain active, do some service. और जब तुम बूढ़े हो जाओ तो तुम मायापुर जाके हरे कृष्ण चैंट कर सकते हो. Now very interesting thing. But Prabhupada said, Tamal Krishna, what does old enough mean? Prabhupada is saying. पर old का मतलब क्या है उसको समझना है. That has to be judged by the individual. वो हर किसी को खुद को जज करना. As for myself, I am not so old. Then we also said, then we also, Srila Prabhupada said, we'll follow your example. Never say we are old enough to stop preaching. But what does it mean basically? Prabhupada is saying, अगर आप बूढ़े भी हो जाओ तब भी आप preaching करते रहो जैसे कि मैं आज preaching कर रहा हूँ. This is the spirit actually we should all carry. This is the spirit we should understand. Just like we see how Shukdev Goswami is preaching to Parikshit Maharaj. Similarly, Prabhupada had been preaching throughout his life. Throughout his life, big programs he was doing, morning walks he was doing. You can see Prabhupada was reading his own books, Srimad Bhagavatam.
है ना, many a times रात में 2 घंटा सोते थे और प्रभुपाद जी लास्ट मोमेंट तक अपने भागवतम को ट्रांसलेट करते थे। 10th कैंटो में जो है वो प्रभुपाद जी ने लास्ट तक उसको ट्रांसलेट किया। So this is the spirit actually all of us should carry. Then actually we can become actually person Bhagavata. Okay. So this is for this is all for the today. If anyone has any doubt or questions, he can ask. Otherwise, we'll stop. Nothing. Okay. So tomorrow we'll be covering mostly all the 12 cantos और कैसे एक कैंटो दूसरे कैंटो से connected है. We'll try to understand scrutinizingly. So let us attend tomorrow's session also very nicely. And I have kept the session only very selective, means only for the few boys. So if you want to invite someone, if he is very new, so don't invite him in these sessions. Okay, you can invite him in other sessions which are being done by Mahapur Prabhu and Ajay Prabhu. They are also taking basic sessions. So please invite them there only. It's only for those boys who have been understanding for a long time the message of Krishna consciousness. Okay, so we'll end it here.